there is no way that we cannot imbibe technology and provide modern weapon systems, equipment, ammunition, operational logistics infrastructure to our army. Therefore, we need to keep pace with the emerging technologies and bring about improvements. And with that as the backdrop, this is the time when we need to induct newer weapon systems, start looking at years beyond, maybe 5 to 10 to 15 years from now, to see what technologies we should be imbibing and what weapon systems we should be inducting into our armed forces. As I mentioned, the challenges of proxy war, terrorism, insurgencies, LWEs in some areas, will keep us embroiled for years to come. And therefore, it is important that people who are deeply committed into the conduct of counter proxy, counter terrorism, counter insurgencies are empowered and enabled. The soldier on the ground, the person with the boots on the ground, has to be provided weapons that give him the lethality to take action when the time comes. At the same time, give them the wherewithal that enables them to use minimum force under some situations. At the same time, provide protective gear to our people who have to face the challenges on ground. But in whatever we do, the most important thing is information and intelligence. Therefore, we have to, in addition to human resource, also invest in technologies that will help the soldiers in getting actionable intelligence for the conduct of operations, which minimize inconvenience to the people in the areas that we are operating, which means we conduct operations, surgical operations based on hard intelligence. Followed with this, we have to also look at modernization of the other arms and services. As far as the mechanized forces are concerned, we are looking at the future infantry combat vehicle. As of now, we are functioning with the BMP 1 and 2. We have to start looking at the future. And this is moving at a fairly good pace. The FICV, the process has started and it is in the pipeline. As far as the FRCV is concerned, you are aware, on our inventory we have the T-72, armored weapon system that came into service in 1979. We have the T-90s which came in later, and the Arjuns, the indigenous Arjun. T-72 will now necessitate a replacement, so we have to start looking at the FRCV, the Future Ready Combat Vehicle. This process is also started, so that we have a replacement for this tank by the time this weapon system has outlived its shelf life. And so we will have a new tank with the T-90s and a few regiments of the Arjuns, and that is what our inventory will comprise of. Along with that, we've got to give them good missile systems to enable them to get better ranges compared to those available to our adversary.
Introduction of guns in the artillery is already on the way. Most of you would be aware of the ULH being contracted. We've got the ATAGS under trials, moving fast. We've got the Dhanush, and so on and so forth. At the same time, our emphasis is on ensuring that we get weapon systems with better ranges, accuracy, and lethality. तो सेना प्रमुख बिपिन रावत की ये प्रेस वार्ता थी जहां पे ये बता रहे थे कि जवानों को सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो ना डालें, शिकायत पेटी हर कमान में लगाई जाएगी, अगर कोई शिकायत हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें, ये कहना है बिपिन रावत का। और किस तरीके से हथियार अपनाए जाए ताकि सेना को और मजबूत किया जाए, इन सभी बारे में बिपिन रावत यहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात जो यहाँ पे सेना प्रमुख बिपिन रावत ने ये कही कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से वीडियो जवान ना डाले, अगर कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। तो जवानों को संदेश सेना अध्यक्ष का साफ साफ ये रहा कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो ना डाले। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ, फिर आर्मी के जवान और अब एसएस भी जो के जवान का वीडियो आया था, उसके बाद लेकिन इससे पहले आपको यह बताया कि क्या कुछ कहा यज्ञ प्रताप ने। जो वीडियो न्यूज 18 इंडिया में दिखाई गई थी, उसके बाद किस तरीके से शिकायत की पेटी लगाने की बात कही गई और उसके बाद प्रेस वार्ता में क्या कहा सेना प्रमुख बिपिन रावत ने, ये आपको सुनाते हैं। श्रीमान, मैं लेस नायक यज्ञ प्रताप सबसे पहले भारतीय सेना के सभी जवानों की तरफ से श्रीमान जी को जय हिंद, जय भारत। श्रीमान, मैं सेना में 15 साल 6 महीने से सर्विस कर रहा हूं, जिसके दौरान मैंने ये रीड किया कि भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। इसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, लेकिन हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सारा पावर अधिकारियों के हाथ में था और अगर ऐसा करते हैं तो उस अधिकारी हमारे ऊपर नाराज़ हो जाते हैं और गलत मेरे ऊपर प्रेशर और मेरे ऊपर गलत कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं सब कुछ सोचते हुए लास्ट में ये फैसला लिया कि मैं इसकी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा और मैंने कुछ 15/6/2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था। इसके बाद जब उस प्रधानमंत्री ऑफिस से ये जवाब मांगा गया कि जो जवान ये लेटर लिखा है क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए, ये सही है गलत है और अगर ऐसा है तो इसमें सुधार किया जाए। जब से लेटर हमारे 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में आया, उसके बाद हमारे 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी कमांडर, कैंप कमांडर, सूबेदार नायक द्वारा मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इतना टॉर्चर किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं एक सोल्जर हूं और सोल्जर के हैसियत से एक गलत कदम उठाना उचित नहीं समझा। मैं सोचता हूं कि मेरे उठाए हुए गलत कदम इस वर्दी को कलंकित कर देगा। भारतीय सेना के अधिकारी, 42 ब्रिगेड के अधिकारी हमें ये कहते हैं कि आपने चैनल को डिसओवर किया है, आपने देशद्रोह का मुकदमा किया है, इसलिए आपको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर आपकी कोर्ट मार्शल या चार्जशीट करके घर भेज दिया जाएगा। मैंने सेना के किसी भी छावनी, किसी जवान की ट्रेनिंग, किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी हथियार या किसी भी पर्सनल कार्रवाई को मैंने इस लेटर में उल्लेख नहीं किया हूँ। ना ही ये लेटर मैं भारत के किस अदर कंट्री को भेजा हूँ। इसके बाद इसमें देशद्रोह का मुकदमा कैसे हो सकता है। श्रीमान जी से मेरा निवेदन है, मेरा लास्ट वीडियोज़ है और लास्ट रिकॉर्डिंग है, लास्ट मेरा ये लेटर है। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ में कुछ ऐसे वीडियो भेज रहा हूँ जो अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इन सब को देखकर मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि आप खुद ही इतने बड़े समझदार और विशेषज्ञ हैं, खुद आप समझ जाएंगे कि एक सेना का जवान किस तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है।
आपसे थोड़ी देर पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि आप शिकायत जो है वो सोशल मीडिया पे ना डालें और साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो शिकायत करेगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया पर सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप का वीडियो दिखाए जाने के बाद इस खबर का बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने जवानों को संदेश दिया है और कहा है कि जवानों की शिकायत सुनने के लिए सभी कमांड ऑफिस में शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि सभी जवानों की शिकायत सीधे उन तक पहुंच सके। जवान की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। Because I would like to reach to every Jawan, no matter where he is deployed, through you, and inform them that for the army, each one of them, irrespective of their arm or service, matter. It is the collective responsibility of every member of the armed forces, irrespective of armed service or his rank, to contribute to the team effort and help us build a strong army. I mean, that is our mission, and that is what we will try and accomplish. इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। प्रणय, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। लांस नायक यज्ञ प्रताप के वीडियो के बाद सजेशन बॉक्स जहां पे आप अपनी शिकायत डाल सकते हैं वो हर कमान में लगाए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अभी सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जवान अपनी बातों को ना डाले, अगर कोई शिकायत हो तो सीधे हम तक पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसको और आपको लगता है कि जवान इस चीज का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही थी, जवानों की शिकायत भी दरअसल इसी चीज को लेकर थी कि उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनका रिड्रेसल नहीं होता है। और शायद इसी मुद्दे पर न्यूज 18 ने जिस तरीके से लांस नायक यज्ञ प्रताप की बात को दिखाया, उसके बाद ही इस मुद्दे को सेना ने भी गंभीरता से लिया है। और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने खुद कहा कि बजाय दूसरे मीडिया या सोशल मीडिया में जाने के, हम चाहेंगे कि सेना के भीतर की जो इतनी भी आवाजें हैं, जो भी मुद्दे हैं, जवानों के हों चाहे अफसरों के हों, वो सीधे उन तक पहुंचे और लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन नहीं ब्रेक होना चाहिए। और इसीलिए एक नई व्यवस्था शुरू की जा रही है जिसके अंदर चीफ ऑफ स्टाफ जो सजेशन या बॉक्स जो है वो लगाया जाएगा सभी कमांड हेडक्वार्टर्स में और आर्मी हेडक्वार्टर में, जहां वो सीधे अपनी बात रख सकें, सीधे अपने जो मुद्दे हैं उनको सामने रख सकें। बिल्कुल प्रणय, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बीएसएफ की बात की जाए तो बीएसएफ का जो पहला वीडियो आया था तेज बहादुर का, उसमें उनका कहना था कि उनको कहा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपनी बात जो है, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर कोई सजेशन बॉक्स में डाले तो उस पे दबाव नहीं होगा क्या? देखिए, इस चीज को लेकर भी सवाल पूछे गए तो सेनाध्यक्ष का कहना था कि हम ये इंश्योर करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि सैनिक जो है एक सैनिक की तरह रहे और वो अपनी पहचान को छुपाए नहीं। हालांकि हम इस पर कार्रवाई करते समय ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो गोपनीय रखी जाए, उसकी आइडेंटिटी गोपनीय रहे और उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न हो, उसके खिलाफ कोई जो है ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए कि उसने चूंकि शिकायत की है या उसने किसी मुद्दे को सामने उठाया है इसलिए उसके खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई हो रही है या उसके खिलाफ किसी तरीके से कोई गलत एक्शन इस चीज के लिए उठाया जा रहा है कि उसने किसी मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल प्रणय, अभी यज्ञ प्रताप का आपने वीडियो दिखाया, अभी जो सेना अध्यक्ष ने बात कही वो तो आगे जो कंप्लेन करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, उनकी बात है कि कंप्लेन बॉक्स रखा जाएगा, लेकिन यज्ञ प्रताप के मामले में किस तरीके से आपका सेना कार्रवाई करेगी? देखिए, इस मामले पर भी उन्होंने काफी डिटेल में कहा और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि दरअसल यज्ञ प्रताप की समस्या अपने से ज्यादा इस बात को लेकर थी कि दूसरे सैनिकों के साथ जो कार्रवाई हो रही है या उनको इस तरीके से सहायक का काम करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस मामले को लेके चूंकि इस मुद्दे पर जो संसदीय समिति थी उसने भी सवाल उठाए थे, संसद में भी कई लोगों ने इस चीज को उठाया है कि ये व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही समस्या जो व्यवस्था है, कॉलोनियल सिस्टम है, बड़ी सिस्टम। हालांकि सेनाध्यक्ष ने इसकी वकालत की कि ये बहुत अच्छा है और सेना
सेना के लिए इसकी बहुत सारी जरूरतें भी है, लेकिन सरकार के साथ बातचीत इस मुद्दे को लेकर चल रही है और सेना ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि यदि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है जो अधिकारियों की जो ड्यूटीज हैं उनको करने के लिए, तो सेना इस चीज के लिए ओपन है, सेना इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जहां तक यज्ञ प्रताप का मुद्दा है, इस मामले के ऊपर भी जांच की जाएगी, इस मामले पर भी जो उसकी शिकायतें हैं उनका रिड्रेसल होगा। बिल्कुल। प्रणय, अभी जो सेना अध्यक्ष ने कहा कि सजेशन बॉक्स लगाया जाएगा, कंप्लेंट बॉक्स लगाया जाएगा, आप अपनी शिकायतें उसमें डालिएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी गुप्त रखी जाएगी। लेकिन अगर अभी रिड्रेसल सिस्टम की बात की जाए तो आर्मी में अभी कैसा सिस्टम है? देखिए, अभी जो सिस्टम है उसके अंदर कमांड, जो चेन ऑफ कमांड जिसे कहा जाता है, आपको हर पायदान पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, पायदान आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि जो शिकायतें होती हैं वो दब जाती हैं, निचले स्तर पर दबा दी जाती हैं, और इसी को खत्म करने के लिए सीधे सीधे, चूंकि सेनाध्यक्ष जो होता है वो पूरे सेना परिवार का मुखिया है, और परिवार के सदस्य को ये सहूलियत होनी चाहिए कि वो मुखिया से सीधे संवाद कर सके, बात कर सके, और संवाद की जो प्रक्रिया है इसे खोलने के लिए ही ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो है चिट्ठियां नहीं भेजी जा सकती, चिट्ठी भेजने की व्यवस्था अभी भी है, लेकिन उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने की है, और उन्होंने इसीलिए ये एक सजेशन या जो कंप्लेंट बॉक्स है वो लगाने का प्रस्ताव दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें कहने के लिए। तो जो कमी पहले रह गई थी शायद उसको पूरी करने की अभी सेना अध्यक्ष यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। बिपिन रावत ने जो कहा कि आप अपनी जो शिकायत है वो कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी बात सीधे मुझ तक पहुंचेगी।